Yes, good evening, everyone. Can you hear me? Please let me know whether voice is clear or not. Someone from division ABC and someone from division DEF. In the meet of ABC student, whenever I will ask some question like if voice is clear, you just put a reaction, thumbs up reaction. You can put it. Okay. Even my WhatsApp is also on. If anything you're facing and not able to put anything in the chat box, then you can WhatsApp me personally as well. Can you see this? In both the meet, my screen is visible. Okay. Already it's 6:05, so I think instead of waiting, let the students join, and I'm going to start the session right now. I hope I have shared the screen too. Just a second. Okay. I've shared screen both the meet. Yes, it is there. And here is the presentation. Let me present it. If any issue you are facing, like voice is not audible properly, otherwise screen is not visible, then you can message me personally on WhatsApp. Okay, so that I can understand and I can take a action accordingly. And request to put the mic off. No, yes, yes, yes. In one of me, it is off. Yeah. So that's why I given permission to message me personally if anything is there. Okay. So coming to the presentation, so the topic of my presentation is Introduction to Research and Review Paper Writing. So let's go ahead. What is research writing? What is research first? We are going to understand. See, it is nothing but the systematic investigation of to establish facts. Simply, we are going to take an example of see, whenever you are going to buy a mobile phone in the market. Okay, see, actually, in these days, you are not going in the market to buy a phone. You are just doing the online shopping and all through Flipkart or Amazon. But it's not like you just search a phone, for example, on a Flipkart, and one phone you have selected and directly buy it. ओके, आर यू डूइंग द सेम? एक फोन हम लोगों ने सिलेक्ट किया और डायरेक्टली बाय करते, ऐसा करते हैं हम लोग? नहीं करते. ओके, सो व्हाट वी डू, सो पहले हम लोग है ना क्या करते, इन्वेस्टिगेट करते, पहले रिसर्च करते.
वो कौन से मोबाइल्स अवेलेबल है, उसमें फीचर्स कौन से अवेलेबल है, अपडेटेड फीचर्स कौन से, अपडेटेड प्रोसेसर कौन सा है, अब लेटेस्ट कैमरा कौन सा अवेलेबल है मार्केट में, ओके, कैमरा फोन कौन सा अवेलेबल है मार्केट में, ये सब हम लोग क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, ओके। तो फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पहले फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी टेक द डिसीजन कि अरे हाँ, तो ये मेरे बजट में ये वाला फोन सही है, ओके, यस, ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक अबाउट द बजट एज वेल। तो हम लोग सोचते हैं कि सब बाबा चलो ठीक है, ये फीचर्स मेरे एक्सपेक्टेशंस है, and this is my budget, so these are matching and I'm going to buy this phone, okay। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं बाय डूइंग द रिसर्च, ओके। क्या किया हम लोगों ने, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेशन किया और फैक्ट हम लोगों ने सब पता किए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टेकन अ डिसीजन कि कौन सा फोन हमें खरीदना है, ओके। In the similarly, like finding answers to specific questions, okay। For example, you have a question about कि laser, हाउ डज द लेजर वर्क, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा फिजिक्स के बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, फिजिक्स लेजर में भी रिसेंट क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, या फिर लेजर का भी रिसेंटली क्या क्या एप्लीकेशंस के लिए लेजर को यूज किया जा रहा है। तो हम लोग ये क्या करेंगे कि आंसर्स फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक क्वेश्चन का, कि लेजर का एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज लेजर, ओके। देयर आफ्टर एडिंग न्यू नॉलेज टू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, ओके। जैसे कि ऑलरेडी कोई टॉपिक के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च हो गया है, ऑलरेडी नॉलेज इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, पर्टिकुलर एरिया, एंड आपको लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, ये थोड़ा नॉलेज सफिशिएंट नहीं लग रहा है, या फिर ये नॉलेज में थोड़ा और कुछ एडिशन होने की जरूरत है, या फिर ये पर्टिकुलर डोमेन के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है, या फिर और रिसर्च करने की जरूरत है, और एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है। तो इन investigators, nothing but the researchers, just do the that experimental work, that research work, and add knowledge in the existing information, okay। So this is nothing but the basic funda of the research, okay। Thereafter, what is review paper, okay। See, let me brief you about कि अपना पूरा सेशन का प्लान कैसे होने वाला है, okay। So it's like in the beginning 20 to 30 minutes I'll be discussing about the slides, okay, the content through the slides. Thereafter, I will be briefing you about Google Note LM, okay। So it is nothing but the facility provided by the Google only। तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि जो whatever the data is available to us, nothing but the research papers available to us, how to extract the information from that in a correct way, okay। It is nothing, it is one of the AI tool that I can say कि AI tool आपको हेल्प करेगा कि एग्जिस्टिंग जो आप लोगों ने पेपर्स अभी तक कलेक्ट किए हैं, तो उसका हेल्प लेके आपको जो रिक्वायर्ड, जो उसमें से एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, या फिर इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, या फिर उसके फाइंडिंग्स वगैरह आपको कैसे सम अप करने हैं, देयरआफ्टर कंक्लूजन कैसे लिखना है, ओके। तो टैबुलर फॉर्म में उसका कोई प्रेजेंटेशन करना है, तो ये सब हम लोग फिर ये नोट एलएन के थ्रू समझेंगे, ओके। दो अपना एजेंडा है आज की सेशन का। पहले तो ये पीपीटी बेसिक कंसेप्ट आपको मुझे क्लियर करवाना, ऑलरेडी एफर्ट्स हैव बीन टेकन by Ansari sir, thereafter Eknath sir and Subhashni ma'am as well. Still, it is my small, I can say कि contribution to make you understand कि ये research क्या होता है और review paper writing क्या होता है. Okay, so what is review paper? So it is nothing but the summary. Okay, better to keep your mic off, otherwise it is getting interruption at my end. Okay, so it is nothing but the summarizing of existing research on a topic. Okay, so if you want to work on the mobile network, मोबाइल नेटवर्क आप लोगों ने अगर टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो इसके ऊपर अगर आगे कुछ काम करना है, ओके, तो इसके ऊपर रिसर्च कुछ करना है आपको, इसमें कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, तो उसके पहले आपको एग्जिस्टिंग मोबाइल नेटवर्क के टेक्नोलॉजीज कौन से वो पहले समझने पड़ेंगे। उसके ऊपर एग्जिस्टिंग रिसर्च क्या क्या हुआ है वो पहले आपको समझना पड़ेगा, ओके। दैट इज नथिंग बट द रिव्यू। एंड
whenever द एग्जांपल वी हैव टेकन जस्ट नाउ कि मोबाइल नेटवर्किंग का, तो फिर ये मोबाइल नेटवर्किंग का आप लोगों ने अगर पूरा जो एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर्स वगैरह है तो उसका स्टडी कर लिया, तो आपको पता चलेगा कि ये जो करंटली अवेलेबल जो नॉलेज है, तो उसमें क्या क्या लैकुनाज है, क्या क्या उसमें गैप्स है। ओके, तो गैप्स जो है, तो उसके ऊपर हम लोग फिर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, what are the difficulties currently people are facing in the technology of mobile networking। तो ये जो गैप आपको पता चलने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ रिसर्च कि हाँ बाबा ये एरिया में कुछ तो रिसर्च करने के लिए स्कोप है। ओके, अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि अगर हम लोगों ने रिव्यू नहीं किया, ओके, यू स्टार्ट टू डायरेक्टली वर्क ऑन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ओके, उसके ऊपर रिसर्च करते गए और बाद में पता चला कि ऑलरेडी समवन एट द कॉर्नर ऑफ अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड पीपल हैव टेकन एफर्ट्स ऑन द सेम टेक्नोलॉजी। वो लोगों ने तुमसे भी ज्यादा लेवल तक उसके ऊपर काम किया है और उनको अच्छे खासे रिजल्ट भी मिले। ओके, तो ये कभी पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। ओके, मे बी वो लोगों ने वो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का, मोबाइल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का जो पेटेंट भी करके रखा है, जिसके ऊपर अब आप लोगों ने अभी काम करना चालू किया है। ओके, तो ये आपको डिफिकल्टी कभी नहीं आएगी अगर आप लोगों ने प्रॉपर रिसर्च रिव्यू किया है तो। ओके, तो ये चलो रिसर्च पेपर के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको ये रिव्यू क्या होता है वो पहले बता बता दे रहा हूँ कि मतलब रिव्यू क्या चीज होती है। ओके, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि वो भाई एग्जिस्टिंग क्या क्या टेक्नोलॉजीज है। ओके, हाफ नॉलेज अगर आप लोग लेंगे कि वो हाँ चलो ठीक है, दो चार कुछ तो रिसर्च पेपर पढ़ लिया, ओके, और अपने काम करना चालू किया, बट ऐसे हो जाएगा कि जो आप लोगों ने दो चार पेपर पढ़े हैं और बाकी के पेपर आप लोगों ने स्किप किए हैं। ओके, तो शायद से वो स्किप किए हुए पेपर में कुछ तो इम्पोर्टेंट इनपुट रहेगा, जो इम्पोर्टेंट गैप रहेगा जो आइडेंटिफाई करना आपसे रह गया। ओके, सो दैट्स व्हाई ओनली थ्रू आउट रिसर्च करने की जरूरत होती है। थ्रू आउट जो भी एग्जिस्टिंग डेटा अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग पेटेंट्स अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। देखो एक्चुअली मैं मेरे स्टूडेंट को वही बात बोलते रहता हूँ कि whenever I used to tell about स्टूडेंट की रिसर्च क्या होता है, या फिर कोई भी चीज के बारे में जब भी हम लोग को सर्वे करना होता है, रिसर्च करना होता है, तो क्या क्या करना होता है। आई यूज टू टेल स्टूडेंट टू गो थ्रू द रिसर्च पेपर अवेलेबल इन द मार्केट, इन द डिफरेंट वेबसाइट्स। ओके, साई हब हो गया, उसके बाद में वन प्लेटफॉर्म इज देयर जहाँ पे जो आईआईटीएन है उनका का पूरा रिसर्च का जो थेसिस होता है, थेसिस सबमिट करते। ओके, इट इज अ शोधगंगा डॉट कॉम इज देयर, शोधगंगा डॉट कॉम, साई हब इज देयर। तो ये प्लेटफॉर्म पे है ना, मतलब रिसर्चर अपने अपने रिसर्च सबमिट करते रहते हैं। देयर आफ्टर डिफरेंट सो मेनी जर्नल्स आर देयर एज वेल। तो ये सब ये रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह हो गया, उसके बाद में पेटेंट्स हो गए। तो ये इसके थ्रू हम लोग को क्या पता चलेगा कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। ओके, देयर आफ्टर ये टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई करने के बाद इवन यू हैव टू थिंक अबाउट कि वो टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर अभी फिलहाल मार्केट में कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर मोबाइल नेटवर्किंग के बारे में बात करें, तो फिर उसको यूज करने वाले कौन से प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो देयर आफ्टर ओनली वी कैन आइडेंटिफाई कि अभी व्हाट टू नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज अवर नेक्स्ट टारगेट, तो अभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अभी इसके बाद में क्या करना है। Okay, so that's why only review is very much important factor in the research. Okay, it provides the critical analysis and insights. Okay, देखो चलो ठीक है, अभी ये आपका जो 1 वीक का इवेंट आपके लिए प्लान किया गया है, भले ठीक है कि इट्स लाइक आपको थ्रू आउट वो टॉपिक का या फिर वो पर्टिकुलर डोमेन का स्टडी करना तो वेरी मच डिफिकल्ट है 1 वीक में। फिर भी आप लोग जो 5 पेपर 10 पेपर जो आप लोग सिलेक्ट करते हो, तो एक्सपेक्टेड है कि आप वो पेपर का अच्छा खासा स्टडी करो। ओके, 10 पेपर भी सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा टॉपिक से जो मोस्टली रिलेवेंट टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, और लेटेस्ट आपको सॉरी मोस्टली रिलेवेंट रिसर्च पेपर आपको सिलेक्ट करना, मोस्टली लेटेस्ट पेपर आपको सिलेक्ट करना है। 10 पेपर्स आपको आपसे सिलेक्ट करना एक्सपेक्टेड है।
तो वो 10 पेपर्स के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर आगे रिव्यू लिख सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यू पेपर ऑलरेडी ये थोड़ा मैंने पहले ही कवर कर लिया है ऐसा पॉइंट। ओके, टाइप्स ऑफ रिव्यू पेपर्स। ओके, सी वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू कि अगर मेरे से कोई स्किप हो रहा है ऐसे लग रहा है, या फिर मेरे स्क्रीन का कोई इश्यू है, वॉइस का कोई इश्यू है, तो इमिडिएटली आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के पास मेरा नंबर है। ओके, जो आज मैंने एफ स्टूडेंट के ग्रुप में क्वेश्चन बैंक शेयर किया था, देयर इज माय नंबर ओनली। ओके, तो you can just go to that number and put me personal message if any issue you are facing. Okay. If any mate issue is there, immediately please inform me. Yes. What next? So let me brief you about the different types of review papers. So narrative review, systematic review, and meta analysis. Okay. So narrative is having the broad concept. Okay. So you have to do the it's not a limited. Okay, simply I can say कि narrative review having the broader approach. Okay, and systematic review is having the limited approach. Okay, narrative review में आपको थोड़ा फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल नेटवर्किंग के बारे में फिर से अगर बात करेंगे, तो उससे रिलेटेड भी बाकी जो सारे टॉपिक्स है, तो उसके सबका स्टडी करना ये आएगा नैरेटिव रिव्यू में। ओके, और बस मोबाइल नेटवर्किंग को ही फोकस करने का है, तो दैट विल बी कम अंडर द सिस्टमैटिक रिव्यू। ओके, एंड वन मोर टाइप इज देयर मेटा एनालिसिस। ये आपको हेल्प करेगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए। ओके, तो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग डेटा है, ओके, जैसे कि कोई कोई डेटा में सम ऑफ द डेटा इज लाइक आई कैन से कि सोलर पावर जनरेशन। ओके, थ्रू द सोलर पैनल। तो सोलर पैनल के थ्रू जो एग्जिस्टिंग अलग अलग टाइप्स के सोलर पैनल अवेलेबल है, तो उसके थ्रू जो पावर जनरेट हो रहा है, तो उसके ग्राफ्स वगैरह कैसे है। ओके, उसके थ्रू कैसा वोल्टेज कैसे डेवलप हो रहा है, एम्पियर कितना डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए सनलाइट का इंटेंसिटी कितना है, तो ये सब आपको नॉलेज कभी मिलेगा। ये सब का रिव्यू अगर कभी आपका ढंग से होगा, जब भी आपके पास ये सब का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपके पास अवेलेबल होगा, तो दैट कम्स अंडर द मेटा एनालिसिस रिव्यू। ओके, तो एक सजेस्ट करूंगा मैं सब स्टूडेंट को कि तुम लोग का जो रिव्यू होगा ना अभी, तो तुम लोग नैरेटिव में मत घुसो। ओके, तुम लोग टारगेट करो बस सिस्टमेटिक रिव्यू। ओके, एक लिमिटेड टॉपिक कंसीडर करो। जैसे कि तुम लोग को अभी मैं बताता हूँ कि तुम्हारे पास जैसे कि अलग अलग थीम है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी रिव्यू। तो ये आपका जो टॉपिक है, बस इसके अंदर जो भी कंसेप्ट है, तो बस इसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे, सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे। ओके, एंड अनदर आई कैन से कि एप्लीकेशन ऑफ आईआईटी फॉर रियल लाइफ। ओके, ये ट्रैक्स है। तो इसके अंदर भी आप लोग चाहिए तो एक स्पेसिफिक डोमेन ले सकते हो, जैसे कि आईआईटी फॉर रियल लाइफ। सुभाषनी मैम, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, अगर ये जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स के थोड़ा सा अंदर भी जा सकते हैं हम लोग ना। आई थिंक शी इज नॉट अवेयर अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग। चलो ठीक है, बट माय कंसेप्ट इज लाइक कि ये जो ट्रैक्स है तुम्हारे, तो बेटर यू शुड स्टिक टू दिस, you stick to this tracks only। एप्लीकेशन ऑफ आईआईटी फॉर रियल लाइफ, मोबाइल टेक्नोलॉजीज। ओके, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली देखो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। ओके, तो आप ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करने से अच्छा एक कोई तो टेक्नोलॉजी उठाओ, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उठाओ मोबाइल का। ओके, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में भी ये बस लिमिटेड हो जाएगा आपका स्टडी। फिर ब्लूटूथ स्टडी के बाद ब्लूटूथ के बारे में लेटेस्ट जो रिसर्च पेपर्स वगैरह है, वो फाइंड आउट करो। और उसका क्या करेंगे फिर, मेटा एनालिसिस की अगर आपको जरूरत पड़ रही है, मतलब उसमें कुछ ग्राफ्स वगैरह अगर है, तो ग्राफ्स को कंपाइल करके आप लोग एक उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रेजेंट कर सकते हो। बट तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा ये सिस्टमेटिक रिव्यू। ये पूरा जो आपके जो टैक्स भी दिए गए हैं, तो ज्यादा भी डेप्थ में ये थोड़ा आपका फिर नैरेटिव रिव्यू हो जाएगा। तो बेटर आप लोग क्या करो, उसको थोड़ा सा अभी मोबाइल टेक्नोलॉजीज में जो है कि जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ वाईफाई टेक्नोलॉजीज। ओके, या फिर साइबर क्राइम मिटिगेशन में, इसमें भी पर्टिकुलर जो क्राइम होते हैं, क्राइम हैपन्स थ्रू व्हाट आई कैन से कि जो एप्स होते हैं,
है ना, जो अलग अलग टाइप के, व्हाट आई कैन से कि जो ट्रस्टेड ऐप्स नहीं रहते, अनट्रस्टेड ऐप्स के थ्रू जो साइबर क्राइम हो रहा है, ओके, तो उसका मतलब एक उसमें भी स्पेसिफाई करो, उसको लिमिटेड करो। ओके, लिमिटेड इन द सेंस कि स्पेसिफाई करो उसको कि बाबा ये टॉपिक के बारे में हम लोग को रिसर्च करना। ओके, ऑलरेडी देयर इज लिमिटेड डे, स्टिल आपको मैं थोड़ा, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसके लिए ट्राई करूंगा। ओके, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि एक उसमें से आपको एक स्पेसिफाई करो आपका टॉपिक। ओके, चाहे तो यू कैन मीट मी टुमारो एज वेल टू डिस्कस कि सर ये मेरा टॉपिक सही है क्या, गलत है, या फिर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है क्या, तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू। ओके, या फिर तुम लोग आज मुझे इस सेशन के बाद में मैसेज करेंगे, या फिर अभी भी कोई तुम लोग क्वेश्चन करना है व्हाट्सएप पे मुझे, तो क्वेश्चन कर सकते हो। आई विल बी एबल टू हेल्प यू, जैसे मेरा अंडरस्टैंडिंग है वैसे आपको मैं हेल्प करने के लिए ट्राई करूंगा। ओके, सो दिस इज अबाउट कि आपका रिव्यू पेपर आप लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे। रिसर्च रिव्यू विल बी बेटर। अगर उसमें आपको जरूरत पड़ रही कि कोई स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट करने की, तो श्योरली तुम लोग उसके लिए स्टैटिस्टिकल, जैसे कि जो हिस्टोग्राफ वगैरह हो गया, या फिर पाई चार्ट वगैरह हो गया, तो ये सब आप लोग तुम्हारे प्रेजेंटेशन में, सॉरी, आपके रिव्यू पेपर में ऐड कर सकते हो। ओके, आपको तो लिमिटेशन, आपको भी ऐसा मिनिमम 5 पेपर 10 पेज, मिनिमम 5 पेज 10 पेज भी नहीं बोला, मिनिमम 2 पेज का आपसे एक्सपेक्टेशन है। वो तो एकदम आराम से तुम लोग बना लो। ओके, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि तुम्हारा रिसर्च पेपर है ना, कम से कम एक 5 पेज का रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब आइडियल पेपर आई कैन से कि चलो ठीक है, 5 पेज का पेपर है, तो तुम लोगों ने अच्छा खासा उसका स्टडी किया है। देखो 10 पेपर आप लोग पढ़ने वाले, यू आर गोइंग टू रीड, अदर यू आर गोइंग टू स्टडी दैट 10 पेपर। वो 10 पेपर में से, है ना, तो 2 पेज तो मतलब वो रिसर्च पेपर ही वो तुम्हारा 150 पेज का हो जाएगा। है ना, एक पेपर अगर 10 to 15 का पेज है, एक ऑन एन एवरेज 10 पेजेस का अगर तुम्हारा एक रिसर्च पेपर है, तो वही तुम्हारा 100 पेज उधर ही हो जाएगा। तो उसमें से 10 पेज लिखना, 5 पेज लिखना तो बड़ी बात नहीं है ना। तो 5 पेज तो तुम लोग वो डेटा रेफर करके 5 पेज तुम लोग उसका बना सकते हो। ओके, फिर भी चलो ठीक है, आपको लग रहा है कि चल सर मेरे से 2 पेज 3 पेज का ही कैपेसिटी है, फिर 3 पेज मेरे लिए ठीक है, completely all right. Okay, just think about the quality content output. Okay, तो जो भी करोगे अच्छे से करो, क्वालिटी कंटेंट रहने दो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कि स्ट्रक्चर ऑफ रिव्यू पेपर। ओके, एक्चुअली ये मेरे पॉइंट और जो आपको पॉइंट दिए थोड़े से ऊपर नीचे या फिर प्लस एक आधा पॉइंट कम ज्यादा हो सकता है। ओके, बट these are the overall points included. These are the overall points required in the review paper: title, abstract, introduction, literature review, discussion, discussion and analysis, thereafter conclusion. Just give me 1 second. Okay, moving to the next, let me check whether all the meets are working properly. So recording is also going on. यस सर सर एंड नाउ वी कैन मैसेज ऑल्सो। मैसेज में अभी कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है दोनों इसमें, क्योंकि द लिंक इज चेंज नो। Okay, coming to the topic now. See, choosing review paper topic. ऑलरेडी ये पॉइंट मैंने कवर किए, फिर भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि आइडेंटिफाई रिलेवेंट एंड करंट टॉपिक। ओके, रिलेवेंट टॉपिक जो आपके ट्रैक से रिलेवेंट टॉपिक है, आपको सिलेक्ट करना है। वो ट्राई करो कि वो लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टॉपिक रहे। ओके, थोड़ा सा व्हाट आई कैन से कि पुराना टॉपिक, या फिर मतलब रिसर्च पेपर आप लोगों ने थोड़े पुराने, रिसर्च पेपर की बात नहीं करो, जो टॉपिक है आपके ट्रैक से रिलेटेड रखो, दैट्स इट। thereafter ensure availability of enough literature. ओके, ऐसा ना हो कि मतलब कि आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि उसमें इनफ लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा कि यू विल बी फाइंडिंग गुड अमाउंट ऑफ लिटरेचर इन दैट डोमेन, बट इंश्योर करना है कि इनफ लिटरेचर आप लोगों ने कलेक्ट किया है। लिटरेचर का मतलब सिंपली यहाँ पे आपको बोलूंगा कि
enough number of research paper you have. Focus on specific aspect. Okay, तो ये previously also I brief about that कि एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट है आपका रिसर्च का, इसके बारे में आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी 10 पेपर आप लोग लेके आए और उसका रिव्यू कर रहे हैं, इट विल नॉट बी गुड। ओके, तो फिर आपका आउटकम जो है, आउटकम जो रिव्यू पेपर बनेगा तो उतना वो पोटेंशियल उसमें रहेगा नहीं। ओके, सो दैट्स व्हाई मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू नाउ। ओके, सो इट इज नथिंग बट द सर्च ऑफ क्रेडिबल सोर्सेस, जैसे कि जर्नल्स हो गया, बुक्स अवेलेबल हो गए, कॉन्फ्रेंस पेपर्स अवेलेबल हो गए। ओके, तो दिस ऑल थिंग्स आर coming under the literature review. Okay, even एनालाइज प्रीवियस रिसर्च, प्रीवियसली जो रिसर्च किया गया है वो टॉपिक के ऊपर कैसे किया गया है। ओके, जो ऑब्वियसली इसके बाद में आपको पता चलेगा कि गैप्स क्या क्या है। ओके, ट्रेंड्स क्या क्या चल रहा है, रिसर्च का ट्रेंड्स मतलब लोग किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। ओके, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके, या फिर उसमें गैप्स क्या क्या है। ओके, तो ये आपको कभी पता चलेगा, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको गैप्स और ट्रेंड्स पता चलेंगे। ओके, thereafter राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, ऑलरेडी मैम सुभाषनी मैम ने और एकनाथ सर ने इसके बारे में बता दिया है, तो थोड़ा क्विकली मैं गो थ्रू करूंगा एंड आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट एजेंडा ऑफ दिस सेशन। ओके, ब्रीफ समरी ऑफ पेपर, एकदम शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ही आपका एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। पढ़ने के बाद मतलब जो पेपर को स्टडी कर रहा है उसको क्विकली समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर रिसर्चर ने ये डोमेन में ये टाइप का कुछ तो काम किया है। ओके, so it should be a key themes and finding should be mentioned in that, should be concise and impactful ये रहना चाहिए। ओके, राइटिंग द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए आपका कि रिसर्च टॉपिक क्या है तुम्हारा, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करना है, उसका सिग्निफिकेंस आपको एक्सप्लेन करना है। देयर आफ्टर आउटलाइन जो है, आउटलाइन जो है उसका आपको बताना है कि बाबा ये तुम्हारे पेपर में तुम लोगों ने क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया है, दैट थिंग शुड बी इंक्लूडेड इन द आउटलाइन। ओके, तो ये सब चीजें के थ्रू आपका बनेगा इंट्रोडक्शन। देयर आफ्टर डेवलपिंग लिटरेचर रिव्यू सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो आप लोगों ने अलग अलग जो डेटा कलेक्ट किया है, लाइक रिसर्च पेपर्स वगैरह जो आप लोगों ने स्टडी की है, तो उसके थ्रू आप लोग को जो उसके जो की फाइंडिंग्स है, ओके, तो उसको क्या करना है, समराइज करना है। जो स्टडी किया आप लोगों ने उसको, एग्जिस्टिंग स्टडी को, 10 पेपर आप लोगों ने जो पढ़े हैं उसको समराइज करना है। ओके, कंपेयर करना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ओके, जो अलग अलग ऑथर ने एक टॉपिक के बारे में, अलग अलग रिसर्चर ने एक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में जो एक्सपेरिमेंट्स किए रहेंगे, रिसर्च किया रहेगा, तो उन अलग अलग रिसर्चर्स का पर्सपेक्टिव क्या है वो आपको ये लिटरेचर रिव्यू में मेंशन करना है। ऑर्गेनाइज लॉजिकली। ओके, अगर जो ऑब्वियसली जो डेटा आप लोगों ने कलेक्ट किया है, लिटरेचर रिव्यू किया है, तो उसको प्रॉपरली क्रोनोलॉजिकल, थेमेटिक, मेथोडोलॉजिकली आप लोगों को क्या करना है, वो प्रेजेंट करना है। ओके, एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग फाइंडिंग्स, जो अलग अलग रिसर्च पेपर हम लोग गो थ्रू करेंगे तो उसके की इनसाइट्स क्या है। देयर आफ्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या है, उसमें ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं रिसर्च के वो पर्टिकुलर डोमेन में, और रिसर्च में गैप क्या क्या तुम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। ओके, दिस थिंग्स आर एक्सपेक्टेड इन द फाइंडिंग्स। ओके, देयर आफ्टर कंक्लूजन, कंक्लूजन में अगेन कि आपको समराइज करना फाइंडिंग्स को, सिग्निफिकेंस को रिस्टेट करना, जो आप लोगों ने किधर किया था, इंट्रोडक्शन में किया था, वो उसको फिर से एक फ्यू सेंटेंसेस में आपको रिस्टेट करना है आपके रिसर्च के सिग्निफिकेंस को। उसके बाद में फिर उसमें फ्यूचर्स को क्या क्या अवेलेबल है, मतलब आप लोग ये जो रिव्यू किया तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ गैप, तो इसमें फ्यूचर में क्या क्या रिसर्च करना एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर में कौन से डायरेक्शन में रिसर्च कर सकते हैं, तो आप लोग ये किधर लिखेंगे, ये कंक्लूजन में लिखेंगे। ओके, देयर आफ्टर साइटेशंस एंड रेफरेंसिंग, तो ऑब्वियसली ये साइटेशंस वगैरह जो है तो आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द डिफरेंट साइटेशंस एंड फिर क्या करेंगे, ये साइटेशंस नथिंग बट द रेफरेंसेस, इन शॉर्ट समझिए रेफरेंसेस है। साइटेशन मतलब आप लोगों ने पर्टिकुलर एक आधा पैराग्राफ लिखा है,
एक आधे रिसर्च पेपर को टारगेट करते हुए, तो आपको मेंशन करना है कि वहाँ पे ये है, जो मैंने पैराग्राफ लिखा है ये रिसर्च पेपर को रेफर करके लिखा है। दो चार सेंटेंस किधर इंट्रोडक्शन में लिखा है, कोई रिसर्च पेपर को रेफर करते हुए, तो आपको इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन करना है। ओके, 1 to 3 पॉइंट से मेंशन करना है कि ये हम लोगों ने क्या किया, ये सेंटेंस लिखा है, तो ये रिसर्च पेपर को रेफर करके हम लोगों ने ये सेंटेंस लिखा। ओके, दैट इज नथिंग बट द साइटेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। फॉर्मेटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। सी वेन एवर यू आर राइटिंग अ पेपर, आप लोगों ने रिव्यू कर लिया, पेपर भी लिखा, 2 पेजेस का, 4 पेजेस, 5 पेजेस, वट एवर। ओके, तो आपको क्या करना है कि ये जो रिसर्च पेपर जो आप लोगों ने लिखा है, तो जो भी आपको जर्नल में उसको पब्लिश करना रहेगा या फिर कॉन्फ्रेंस में आपको पब्लिश करना रहेगा, तो इंश्योर करना है कि वो जर्नल के लिए, वो कॉन्फ्रेंस के लिए तुम्हारा रिसर्च पेपर वहाँ पे उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली है क्या नहीं। ओके, ऑब्वियसली ग्रामर एंड क्लैरिटी, दीज आर द बेसिक थिंग्स। ग्रामर और क्लैरिटी उसमें अच्छे से होना चाहिए। क्लैरिटी इन द सेंस, क्लैरिटी इन सेंटेंसेस। जो तुम लोगों ने जो रिसर्च किया है, तो रिसर्च जो है, इफ समवन इज गोइंग टू रीड दैट रिसर्च पेपर, तो रीडर को वो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि आपने क्या रिसर्च किया। दैट इज नथिंग बट क्लैरिटी अबाउट योर रिसर्च पेपर। एंड सीक पीयर रिव्यू। तो अगर आपने पेपर लिखा है, तो आप इवन यू कैन टेक अ सजेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स कि अरे हाँ, मैंने पेपर लिखा, देख तुझे बाबा पढ़ने के बाद कुछ रियलाइज हो रहा है क्या बाबा, सब सही सही किया है क्या नहीं। ओके, सो इन दैट वे, what I can say, in that way you can do the review, do the peer review। इवन यू कैन देखो, अभी एक्चुअली आपके लेवल पे तो आप तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो गए या फिर पीएचडी के स्टूडेंट हो गए, तो ये क्या करते हैं कि खुद रिसर्च पेपर लिखने के बाद उनके फ्रेंड्स को, मतलब वो भी रिसर्चर ही रहते हैं, पीएचडी स्टूडेंट हो गए, मास्टर स्टूडेंट हो गए, तो दे हैव दैट मच कैपेबिलिटी कि बाबा दूसरे के पेपर को थोड़ा समझ सके और उसको कुछ सजेशन दे सके उसको इम्प्रूवमेंट के लिए। तो दैट इज नथिंग बट द पीयर रिव्यू। ओके, और फिलहाल भी तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग जो रिसर्च पेपर लिखेंगे, तुम्हारे फ्रेंड को दे सकते हो रीड करने के लिए, थोड़ा उसका सजेशन वगैरह ले सकते हो उसको पेपर को तुम्हारे इम्प्रूव करने के लिए। ओके, एक थोड़ा रिक्वेस्ट है मुझे, request from my side to coordinators कि actually I'm doing the presentation through my laptop, so I'm not able to take a स्क्रीनशॉट कि एक सामने जो प्रेजेंट किया वो स्क्रीन है और पार्टिसिपेंट भी है। तो रिक्वेस्ट टू फ्यू स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ने लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन किया है, कि थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करो। ओके, काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। ओके, एंड मूविंग टू नेक्स्ट। प्रेजेंटिंग योर रिव्यू पेपर। ओके, तो ये ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग ये पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट करो। अभी फिलहाल आपके लिए वैसे नहीं बोला, आप लोग डायरेक्टली, आपका रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर ही आप लोग डायरेक्टली प्रेजेंट करने वाले, आप लोग अलग से पीपीटी में नहीं करने वाले। देखो, एक्चुअली एक लास्ट सेमेस्टर में मैंने स्टूडेंट को पीपीटी बनाने के लिए बोला था थ्रू द मिनी प्रोजेक्ट। ओके, जो मिनी प्रोजेक्ट दिया था, तो तभी मैंने बच्चों को एक्सप्लेन भी किया था कि देखो, पहले क्या होता है ना कि डायरेक्टली पीपीटी नहीं बनता है कोई भी चीज का। डायरेक्टली पीपीटी नहीं बनता है, पहले क्या होता है, पहले रिसर्च होता है। रिसर्च का पहले रिव्यू पेपर बनता है, वो रिव्यू पेपर के बाद में फिर उसका क्या बनेगा, बाद में उसका प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन इज द लास्ट आउटपुट। ओके, जिसके थ्रू आप लोग आपका अपने जो नॉलेज कलेक्ट किया है, आपने जो रिसर्च किया है, तो बस प्रेजेंटेशन के थ्रू, पीपीटी के थ्रू आप लोग क्या करते हो, बस उसको शोकेस करते हो, दैट्स इट। ओके, जैसे कि इससे ओके, हाँ, प्रेजेंटिंग रिव्यू पेपर तो
ये बेसिकली स्ट्रक्चरिंग योर प्रेजेंटेशन प्रॉपरली, तो स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, इफेक्टिव स्लाइड डिजाइन उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, एंड यू शुड एंगेज द ऑडियंस। ओके, ऐसा ना हो कि मतलब आप जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो एकदम डेप्थ में चले गए, थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहे आपका ऑडियंस, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड एबल टू कनेक्ट द ऑडियंस, यू शुड एबल टू एंगेज द ऑडियंस व्हेनेवर यू, आपका जो भी प्रेजेंटेशन होगा तो भी ये बात ध्यान रखना। ओके, तो आप लोग जो बात कर रहे हो, जो भी टॉपिक के बारे में प्रेजेंट कर रहे हो, तो इंश्योर करो कि आपके जो लिसनर्स है, जो ऑडियंस है, तो वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपका एक्सप्लेनेशन वो समझ पा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका जो रिसर्च पेपर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन पीपीटी नहीं, आपको रिसर्च पेपर ही प्रेजेंट करने के लिए बोला है। ओके, मतलब वही आप लोग शोकेस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन यू हैव टू एंश्योर कि आपका जो वट एवर यू आर गोइंग टू से टू द ऑडियंस, तो आप अच्छी तरीके से उसको क्या करेंगे, बताएंगे। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। देखो, ये रिसर्च पेपर लिखते टाइम आपसे क्या क्या मिस्टेक हो सकता है। लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कोहरेंस। ओके, कोहरेंस मतलब आप कितना अच्छी तरीके से आपने रिसर्च टॉपिक को कनेक्ट किया है। ओके, एंड क्लैरिटी मतलब आप लोगों ने एक टॉपिक सिलेक्ट किया एक, और आप किसी दूसरे टाइप का या फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर का रिसर्च पेपर आप लोगों ने पब्लिश किया, तो मतलब टॉपिक जो आपका है और आपका जो रिसर्च है, तो दोनों में क्या होना चाहिए, कि अच्छी तरीके से क्लैरिटी होना चाहिए। ओके, देर आफ्टर वीक साइटेशंस। साइटेशंस अच्छी तरीके से, मतलब जो भी आप लोगों ने डेटा आपके रिसर्च पेपर में पब्लिश किया है या फिर मतलब शोकेस किया, ओके, तो अच्छी तरीके से साइटिंग होना चाहिए। मतलब आप लोगों ने वो पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा है, या फिर एक प्रिंसिपल लिखा है, तो प्रिंसिपल आपको कौन से रिसर्च पेपर में मिला या फिर कौन से जर्नल में मिला, आपको मेंशन करना है। ओके, इग्नोरिंग फीडबैक। ओके, व्हेनेवर द पेपर इज देयर, जैसे मैंने बोला कि आपको क्या करना है, पीयर रिव्यू करना है, पीयर रिव्यू करना है, तो पीयर रिव्यू में आपको अगर क्या मिल रहा है, कोई फीडबैक मिल रहा है, तो आपको फीडबैक लेके आपके रिसर्च पेपर में इम्प्रूवमेंट भी करना है। इसके लिए मैंने क्या बोला कि आप तुम्हारे फ्रेंड्स को दिखाओ, तुम्हारे मेंटर को तुम्हारा जो पेपर है वो दिखा, जो भी आपको फीडबैक मिलेगा, फीडबैक के अकॉर्डिंगली आपके पेपर को आपको इम्प्रूव करना है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग रिसर्च, राइटिंग रिव्यू पेपर, इट एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ये ऑब्वियसली आपको पूरा डेप्थ नॉलेज देगा टॉपिक के ऊपर, आपका क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल इंप्रूव करेगा, एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको बना के देगा। इसके लिए आप फर्दर रिसर्च करने के लिए, एंड इट विल आल्सो इम्प्रूव द एकेडमिक राइटिंग एबिलिटीज। इतना सब स्टडी करने के बाद ऑब्वियसली आपको आपका एकेडमिक राइटिंग एबिलिटीज आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, सो दिस दिस इज माय स्मॉल अटेम्प्ट टू थोड़ा इंकरेज करने के लिए मैंने ट्राई किया आपको कि आप लोग अच्छा खासा रिसर्च करेंगे। जो आप टॉपिक सिलेक्ट करने वाले, व्हाट आर द ट्रैक्स गिवन टू यू, आप लोग अच्छी तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। चलो ठीक है, इनफ अबाउट दिस। चलो ठीक है, जो रिमेनिंग 20 मिनट्स आर देयर, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको नोट एलएम, गूगल नोट एलएम जो फैसिलिटी, एआई फैसिलिटी अवेलेबल है गूगल की तरफ से, उसके बारे में आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। आई थिंक माय होल स्क्रीन इज शेयर टू यू ऑल। ओके, ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। Coming to लेट मी गो टू माय पर्सनल अकाउंट। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेरा रिसर्च वगैरह भी आपको टॉपिक देखने के लिए मिल सकता है। टुडे ओनली आई हैव डिस्कस दैट विद फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स इन बी डिवीजन। रिसर्च रैबिट ऑलरेडी, सी रिसर्च रैबिट के बारे में आपको ब्रीफ किया था अंसारी सर ने डे वन में आपको अंसारी सर ने इसके बारे में जो अच्छी तरीके से आपको बताया था। एक सेकंड में सब क्लोज कर देता हूँ क्योंकि आपको फ्रेशली बताता हूँ
मतलब स्क्रैच से कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, लॉगिन वगैरह क्या होता है, कैसे आपको रिसर्च करना आपसे एक्सपेक्टेड है? ओके, जैसे कि चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च रैबिट जो है ना टूल, ओके, रिसर्च रैबिट ये वाला टूल यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च पेपर पहले फाइंड आउट करेंगे। ओके, अच्छा, मेरे नेटवर्क ने अच्छा खासा सपोर्ट करना चाहिए तो हम लोग क्विकली इसको गो थ्रू कर सकते हैं। यस, हियर इट इज। ओके, तो यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। ओके, so here are nothing but the different areas on which current I'm working and doing the research. And see, I will tell you कि आपको अभी काम कैसे करना है इसमें। तो you have to just click at here add collection and you have to put the title like अभी देख फॉर एग्जांपल आपकी जो अलग अलग ट्रैक की उसमें से हम लोग क्या करेंगे, साइबर क्राइम एंड मिटिगेशन। अभी मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ। ओके, चलो ठीक है, इन डेप्थ जाना है तो चलो ठीक है, फिलहाल ओवरऑल ओवरऑल आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। उसके बाद में फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से टॉपिक में काम करना है। टॉपिक सिलेक्शन तुम्हारे एंड से रहेगा, मैं आपको बस एक डेमो दे रहा हूँ। एप्लीकेशन, अच्छा, साइबर क्राइम एंड मिटिगेशन ये हम लोग टारगेट करना है। साइबर क्राइम एंड मिटिगेशन, क्योंकि ये मेरा टॉपिक है। इसको कर लिया मैंने ऐड। ओके, तो यहाँ पे देखो टॉपिक ऐड हो गया। तो इसमें मुझे मैंने तो अभी एक कलेक्शन ऐड किया है यहाँ पे। आई हैव टू जस्ट ऐड पेपर्स इन दैट। अभी ये एरिया में मुझे कौन से पेपर अवेलेबल है, ये पेपर मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। साइबर क्राइम एंड मिटिगेशन ये मैंने कर लिया यहाँ पे सर्च। ओके, तो ये मुझे पूछ रहा है कि ये भी कौन से ऑलरेडी मैंने ऑल सब्जेक्ट एरियाज के ऊपर पहले से सिलेक्ट करके रखा था, तो ऑल सब्जेक्ट एरियाज वाले पेपर आ गए। बायोमेडिकल वाला चाहिए तो बस बायोमेडिकल वाला भी आपको पेपर ये सिलेक्ट करके दे सकते हैं। ओके, तो आफ्टर दैट यू आर सपोज टू ऐड टू कलेक्शन। ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो रिसर्च पेपर आपके लिए हेल्पफुल लग रहे हैं ना। Now, see, yeah, you have to think about the relevance. Okay, आपको relevance paper जो है, okay, तो ये आपसे तभी पता चलता है कि strategies और इस्लामिक बैंक्स। ओके, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि आपका टॉपिक स्पेसिफिक होना चाहिए। तो मतलब अभी देखो ये लोगों ने टारगेट किसको किया, बैंक को किया। ओके, या फिर कोई कोई रिसर्च करेगा किसके बारे में, मोबाइल के थ्रू जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं तो उसके बारे में कोई रिसर्च करेगा। ओके, कोई कोई कंप्यूटर के थ्रू, एक आधा वायरस के थ्रू साइबर क्राइम होते हैं उसके उसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं। ओके, तो जो टॉपिक को स्पेसिफाई करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अभी मैं ओवरऑल आपको बस ये टूल्स को कैसे यूज करना है बता रहा हूँ। ओके, ये मैंने अलग अलग पेपर यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। अलग अलग रिसर्चेस जो है अलग अलग जर्नल से रहेंगे या फिर अलग अलग ये बुक के चैप्टर्स रहेंगे। तो आई एम गोइंग टू ऐड इट। ऐड करने के बाद आपको ऐसा एक पॉपअप आएगा कि ऐड हो गया है करके। मेजर इनिशिएटिव्स फॉर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ साइबर क्राइम्स इन इंडिया। ओके, साइबर फिजिकल सिमुलेशन एंड ऑप्टिकल मिटिगेशन फॉर शिपिंग पोर्ट ऑपरेशन। ओके, ये सबको मैंने अभी यहाँ पे ऐड कर दिया। आई थिंक एक 8-10 पेपर तो हो गए रहेंगे। जी चलो ठीक है, और ऐड कर लेते हो। बिकॉज कैसे होता है ना कि हर एक पेपर का आपको पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। ओके, तो बेटर अभी हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन अपना है तो उससे थोड़ा ज्यादा पेपर हो। आप लोग का 10 का टारगेट है तो आप लोग यहाँ पे 20-30 पेपर आप लोग यहाँ पे क्या करो, ऐड करके रखो। ओके, एंड थिंक अबाउट द रिलेवेंस एज वेल एज। ओके, रिलेवेंस और लेटेस्ट 5 इयर्स के पेपर आपको चाहिए। 22 है मतलब ठीक है, चलो। ओके, 20
17 भी चलो ठीक है, लेटेस्ट 5 ईयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। ओके, शायद से एक आधा पेपर मेरे से गलती से सिलेक्ट हो गया रहेगा। 21 ठीक है। आइडियली लेटेस्ट पेपर हम लोग को सिलेक्ट करना है। व्हाट आर द पेपर्स आई हैव एडेड, जस्ट मूविंग अहेड विद द हेल्प ऑफ दैट। ओके, ये पेपर्स इधर गए, देखो इधर आ गए। ये सब पेपर इधर आने के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, एक एक ऊपर क्लिक करना है। इसका पीडीएफ अवेलेबल है क्या, इसका पीडीएफ नहीं है अवेलेबल। ओके, सेकंड पेपर, इसका भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। तो आप साई हब इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो डायरेक्टली। टाइटल गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हो आप लोग, अगर मिला समवेयर लोकेशन पे उसका आपको अगर मिल रहा है तो पीडीएफ तो अच्छी बात है। ओके, अदरवाइज ये जो इसका एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट भी आपको अच्छा खासा हेल्प कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट आपको हेल्प करेगा तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए। ओके, तो यू कैन रेफर दैट एब्स्ट्रैक्ट, इट इज रियली गुड फॉर यू। ओके, तो आई थिंक तो इसके रिसर्च पेपर अभी मुझे मिल नहीं रहे, शायद से हम लोग को टॉपिक चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे लग रहा है। ओके चलो ठीक है, लकीली एक मुझे मिल गया पेपर, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। कंटिन्यू टू साइट, होपफुली डेंजरस नहीं रहना चाहिए। ट्राई टू वन मोर टाइम। ओके, इट इज देयर, चलो ठीक है। न्यू फोल्डर, रिसर्च पेपर 1 करके फोल्डर बना लिया, इसमें मैं भी ये सब पेपर सेव करके रखूंगा। ओके, एक पेपर हो गया। ओके, फिलहाल मैं टारगेट रखता हूँ 5 पेपर का, आपको ये 10 पेपर के लिए एक्टिविटी आप लोग करेंगे। वन मोर पेपर आई एम फाइंडिंग ओनली। another paper is here, pdf we can available, yes, good, it is there। 3 पेपर हो गए, चलो ठीक है। टाइम इज ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, चलो ठीक है, फिर भी एक दो पेपर के लिए ट्राई कर लेते हैं। चलो ठीक है, इतने फिलहाल हम लोगों ने ऐड किए थे यहाँ पे। ओके, और भी पेपर ऐड कर सकते हैं, उसमें का पीडीएफ चेक कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो डायरेक्टली टाइटल कॉपी पेस्ट करके गूगल पे साई हब पे आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पे पेपर सर्च कर सकते हो। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अभी ये फिलहाल जो 3 पेपर हम लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे। ओके, तो ये 3 पेपर का हेल्प हम लोग करेंगे, हेल्प लेके क्या करेंगे, तो RP1, ये 3 पेपर का हेल्प लेके अलग अलग जो आपका रिसर्च पेपर का कंटेंट है, वो कंटेंट अभी कैसे बनाना है वो देखेंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अभी कौन सा tool यूज करना है, गूगल नोट एलएम। Price means नोट एलएम, एलएम एंटर। ओके, तो फर्स्ट वन गूगल नोटबुक एलएम। ओके, ये नोट टेकिंग रिसर्च असिस्टेंट है आपका। ऑलरेडी मेरा लॉगिन है, तो ये अदरवाइज आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग इसमें काम कर सकते हो। ओके, ऑलरेडी मेरे टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इफ यू आर न्यू एट दिस प्लेटफॉर्म तो आपको ये कम्प्लीटली ब्लैंक दिखेगा, तो आपको क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू, उसके बाद में ये टू मेंशन कि आपका जो टॉपिक क्या है, ये किसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हो। साइबर क्राइम एंड मिटिगेशन, यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया, और
सी अभी आपको फॉर एग्जांपल इट इज नथिंग बट द एआई टूल। आप लोग जो इसको डेटा प्रोवाइड करोगे तो वो डेटा के ऊपर काम करके आपको दे देगा। मतलब पीडीएफ अगर आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड सोर्स के ऊपर क्लिक करके मल्टीपल पीडीएफ हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए या फिर सिंगल पीडीएफ ऐड किया, या फिर ये आपको इवन ऐसा भी फैसिलिटी देता है कि ऐड मल्टीपल पीडीएफ, जैसे कि अभी फिलहाल करके ही देखते हैं। ये मल्टीपल पीडीएफ मैंने ऐड कर दिया। ओके, ओके इट इज ओके दिस पीडीएफ आर देयर। ओके अभी ये इसमें से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि पूरे के पूरे पीडीएफ के ऊपर काम करना है या फिर कोई एक पीडीएफ के ऊपर काम करना है। ओके, जैसे कि फिलहाल बस एक पीडीएफ के ऊपर काम करना है। ओके, तो आपको पहले रीड करना है, ये रिसर्च पेपर के बारे में रीड करना है। तो आप क्या इसको क्या पूछोगे कि ब्रीफ अबाउट द पेपर। तो आपको खुद को एक आइडिया आ जाएगा कि ये पेपर में क्या लिखा है। ओके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझेगा, ऐसे लैंग्वेज में आपको ये पूरा ब्रीफ करके दे देगा। ओके, तो इसका हेल्प लेके आपको आप कुछ स्टडी भी कर सकते हो और आपका ये पेपर बनाने के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। देखो ये अच्छी तरीके से इसने क्या कर दिया, जो भी मेथोडोलॉजी ये रिसर्चर ने ये टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करने के लिए यूज किया है, तो पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी हो गया, पूरा का पूरा स्टेप वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, okay, few questions are there on WhatsApp. I will just take the questions later. हाँ, व्हाट नेक्स्ट, कि देखो अभी ये जो टूल है तो हम लोग किसके बारे में बात करें कि हाँ क्वेश्चन किया मैंने कि ब्रीफ अबाउट द पेपर, तो ये आपको पूरा का पूरे पेपर के बारे में ब्रीफ करके दे दिया। अगर आपको ये सब पेपर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इसके बारे में आपको क्या लिखना है कि इंट्रोडक्शन एक लिखना है। ओके, राइट इंट्रोडक्शन फॉर रिव्यू ऑफ दिस रिसर्च पेपर्स। वेट, आई थिंक इसके पहले हम लोग है ना एक एब्स्ट्रैक्ट भी इसके लिए इसको पूछ सकते हैं, देखते हैं क्या आंसर दे रहा है। राइट एब्स्ट्रैक्ट फॉर रिव्यू ऑफ दिस रिसर्च पेपर, मतलब आपका जो कंटेंट है तुम्हारे रिसर्च पेपर का, जो आपको 2 पेज का एक्सपेक्टेड है, 5 पेज का एक्सपेक्टेड है, ये आपको बनाने के लिए हेल्प करेगा। ये 3 रिसोर्स मैंने यहाँ पे पुटअप किए। आपको कितने पुट करने हैं, मिनिमम 10 पुट करने हैं, लेकिन आपको किसके बारे में सोचना है, यू टू थिंक अबाउट द रिलेवेंस। ओके, ये रिलेवेंट पेपर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, ओके आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा ये रिलेवेंट पेपर आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, उसके बाद में आपको ये रिव्यू करने का काम, देखो ये अच्छी तरीके से आपको इसका एब्स्ट्रैक्ट लिख के दिया है। ओके, तो थोड़ा इसको पैराफ्रेजिंग वगैरह करके आई थिंक एकनाथ सर ने वो कवर किया है कि आपको पैराफ्रेजिंग वगैरह कैसे करते हैं, मतलब इसके थोड़ा सेंटेंसेस वगैरह कैसे चेंज करना है, अट्रैक्टिव कैसे करना है। ओके, तो थोड़ा वो करके आपका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से बन जाएगा। ओके, तो अभी सेम सेंटेंस में उठा के इधर इंट्रोडक्शन कर दूंगा, इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आई कैन राइट हियर इंट्रोडक्शन। Okay, so here it have been provided as the introduction.
ओके, इंट्रोडक्शन भी प्रोवाइड कर दिया है। ओके, डायरेक्टर अपना और क्या क्या एक्सपेक्टेड है कि जैसे कि डिस्कशन हो गया या फिर फाइंडिंग्स हो गए, कंक्लूजन हो गया। ओके, ये भी आपको मेथोडोलॉजी। इवन आपको सीक्वेंस में चाहिए 3 पेपर का अलग अलग से, तो वो भी आपको ये करके दे सकता है। लिटरेचर रिव्यू ऑफ 3 पेपर्स इन अ सीक्वेंस। देखो, पेपर वाइज इसने क्या किया अभी। पेपर 1 ये क्या है, फर्स्ट पेपर में क्या बोला। ओके, फर्स्ट पेपर इन C2 मॉडल डाउनलोडिंग टू रियलाइज versatile एज AI in 6G mobile networks introduces novel approach to dynamically updating AI models on edge devices. Okay, thereafter ये it is about paper 1. Thereafter this is about paper 2 and this is about the paper 3. Okay, तीनों पेपर का आपको लिटरेचर रिव्यू भी आपको इसने करके दे दिया। Okay, जो आपका लिटरेचर रिव्यू आपको रिसर्च पेपर में ऐड कर दिया, दैट ऑल्सो यू कैन रेफर इट थ्रू दिस। ओके, वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ओके, ओके, दैट्स इट आई थिंक। ये टूल जो है आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा। व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी रियली हेल्पफुल फॉर यू? ओके, यू कैन जस्ट पुट द कमेंट ओवर हियर। क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस भी आप लोग ये चैट बॉक्स में पुट अप कर सकते हो। आई थिंक ये चैट बॉक्स में अभी दिख रहा है। ओके, आई थिंक दैट वाज माय एजेंडा ओनली। ये 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना था कि अबाउट रिसर्च रिव्यू, रिसर्च पेपर कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये रिसर्च रैबिट इसके थ्रू पेपर को कैसे क्या करना है, फिल्टर कैसे करना है, और फिल्टर करने के बाद ये बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दिस गूगल है आपको आपको इसका हेल्प कैसे लेना है आपका पेपर बनाने के लिए। ओके, दैट इज नथिंग बट द एजेंडा ऑफ माय सेशन। आई होप कि मेरे एंड से भी डन। ओके, तो आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे छोटे मोटे, आई विल ट्राई टू आंसर इट एज पर माय कैपेबिलिटी। इवन अच्छा द क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट ने किए थे कि रिसर्च पेपर डिफरेंट। यस यस, रिसर्च पेपर इज डिफरेंट एंड रिव्यू पेपर इज डिफरेंट। देखो बेटा, इट्स सिंपल। देखो, अगर आपको रिसर्च करना है तो उसके पहले रिव्यू करना होता है। ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द करंट फाइंडिंग्स। ओके, फिलहाल वो पर्टिकुलर रिसर्च एरिया के ऊपर क्या क्या काम हुआ है। ओके, ये रहेगा रिव्यू पेपर। ओके, और आप अगर रिव्यू में आपने क्या किया, गैप फाइंड आउट किए, ट्रेंड्स पता किए, वो ट्रेंड्स को रेफर करते हुए, गैप्स को रेफर करते हुए आपने उसके आगे कुछ रिसर्च किया, और आपने जो रिसर्च किया है उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा रिसर्च पेपर। ओके, और एग्जिस्टिंग रिसर्च को आप स्टडी करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे थ्रू द पेपर, तो हो जाएगा रिव्यू पेपर। ओके, और आपने खुद जो रिसर्च किया है और खुद के रिसर्च को पब्लिश करेंगे तो हो जाएगा रिसर्च पेपर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू पेपर एंड रिसर्च पेपर। ओके, दैट्स इट।
कंप्यूटर का नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. अच्छा, आई थिंक हियर इट इज गिवन. ओके, अभी सेटिंग हो गया. कैन वी मेक द पेपर ऑन डिफरेंट सब टॉपिक्स ऑन गिवन ट्रैक्स? नहीं नहीं नहीं, हाउ इट इज पॉसिबल, है ना. बेटर टू यू जस्ट सिलेक्ट वन ट्रैक. ओके, एक ही ट्रैक सिलेक्ट करो, एक ट्रैक के अंदर ही जाना है. मैंने बोला आपको कि आपको आपका रिसर्च है ना स्पेसिफिक होना चाहिए. ओके, इवन मेरा सजेशन है कि जो ट्रैक बोला ना, तो ट्रैक में भी आप क्या करो, उसमें भी आपका टॉपिक ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए ट्राई करो. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे हम लोग. जैसे कि मैंने बोला कि वो साइबर क्राइम्स वगैरह के बारे में एक ट्रैक है ना. तो उसमें आप लोग क्या करो कि यू जस्ट आइडेंटिफाई वन ट्रैक कि मतलब साइबर क्राइम हो रहा है मैसेजेस के थ्रू. ओके, साइबर क्राइम हो रहा है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके थ्रू क्या क्या ये हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है. तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर डोमेन सिलेक्ट करो, उसमें भी ये साइबर क्राइम थ्रू दिस. ओके, तो उसके बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हो. ओके, उसका उसका आप लोग रिव्यू कलेक्ट कर सकते हो. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में फिर वो कुछ मतलब नहीं होगा. दैट कैन नॉट बी द प्रॉपर काइंड ऑफ रिसर्च. दिस वाज द क्वेश्चन बाय प्रांजल सिरसाट. गुड. If questions are not there, then I'm going to wind up the meet. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Yes. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, if no questions, then we are going to wind up here. Thank you everyone for joining the meet. And still, if you have any query, then you can message me personally. Otherwise, you can meet me tomorrow. Okay, better होगा ग्रुप में आ जाओ तुम लोग साथ में, तो मैं तुम लोग को साथ में गाइड कर सकता हूँ. Okay, thank you everyone. Lisa.